On the previous turn, we have completed chapter 13 of English grammar. So today, I already told you on the previous turn that on the coming turn, we will start English literature. Children, chapter 6 is for reading. So we will do reading it after completing chapter 7. अपना half yearly का syllabus complete करने के बाद we will do reading of chapter 6. That is for reading only. So today we will start chapter 7. And the chapter 7 is a family on the roof. Children, have you seen eggs? Birds के egg देखे हैं आपने? Bird के eggs देखे हैं? You might have seen. You might have noticed कि जो bird है, ठीक है, वो अपने जो भी egg nest बनाती हैं उसमें अपने eggs को रखती हैं, right? And चाहे धूप हो, चाहे like बारिश हो, ठंड हो, it take cares of the egg. ये protect करती है अपने eggs को, right? Because from the eggs, the baby ones of the birds come out, right? Yes. So we will just study about the birds and how they they protect how it protect the eggs. We'll see this also. So let us start. I will read, children. I'm sure that you must be holding pencil and eraser in your hand and you must be having book as well. आपके पास book होनी चाहिए. Page number 40 आप open करेंगे and मेरे साथ साथ आप reading भी करेंगे. You will be reading with me. After that you will understand it. और एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से एक बार रिवाइज करेंगे उसको. And the word which you feel is difficult, जो आपको word difficult लगता है, आप उसको क्या करेंगे? Yes, as always underline करेंगे and you will find the meaning. And if you don't find the meaning, आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है? Let's move ahead. Sure. One evening, my mother called me excitedly from the balcony. I went up and looked to where she was pointing. I saw an egg among the end-to-end creepers on the roof of our patio. I thought it could be a snake's egg. Sometimes we did spot snakes slithering among the bushes, but a snake's egg could not have been this big. Then it occurred to me that it could be a peahen's egg. There were many in our neighborhood. Now, the narrator is talking about one evening. एक evening की बात है. My mother called me. यानी जो narrator है, narrator की mother ने, narrator मतलब जो ये story narrate कर रहा है, तो called. And narrator is a lady or girl here. एक बच्ची है यहाँ पर. You can see in the picture. आप उस बच्ची को picture में देख सकते हैं. Given in your book. Excitedly यानी in excitement. बहुत ज़्यादा excitement होता है ना किसी चीज़ के लिए हमें. Yes. In excitement from the balcony, I went up and looked to where she was pointing. I went up. Then means that girl went up. वो girl ऊपर गई and looked. Where she was pointing, उसकी मदर जो जिस तरफ पॉइंट कर रही थी, इशारा कर रही थी, उधर उसने देखा. I saw an egg among the end-to-end creepers on the roof of our patio. Creepers होता है the person or animal one who creeps, जो crawl करता है, जो घिस घिस के चलता है, रेंग के चलता है. तो उन creepers के बीच में क्या देखा उसने? Twisted creepers and twisted थे वो, twisted together. उनके बीच में एक एग देखा. क्या देखा? एग. आई थॉट, पैशियो होता है चिल्ड्रन घर के बराबर में ही, मतलब घर के ही हमारा पोर्शन, उसको बोलते हैं एंटवेड. जो हमारे घर से ही जुड़ा हुआ होता है वो बाहर की तरफ, दैट इज बैठने के लिए जो जगह होती है बाहर, घर के बाहर, उसको बोलते हैं पैशियो. I thought it could be a snake's egg. अब नैरेटर ने क्या सोचा? ये किसका एग हो सकता है? स्नेक का हो सकता है. स्नेक? यस, स्नेक का एग हो सकता है. बिकॉज समटाइम्स वी डिड स्पॉट. स्पॉट मतलब मार्क, यानी देखा गया कुछ स्नेक्स को बुशेस की तरफ. स्लिदरिंग अमंग द बुशेस. स्लिदरिंग होता है चिल्ड्रन मूवमेंट. स्लिदरिंग क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अ स्नेक. तो मूव करते हुए कहाँ, किसकी तरफ? बुशेस की तरफ. बुशेस मीन्स झाड़ियाँ, जहाँ ग्रासेस एकदम से झाड़ी होती है, खट्टी होती है, वहाँ दैट इज बुशेस. बट अ स्नेक्स एग कुड नॉट हैव बीन दिस बिग. लेकिन स्नेक का एग इतना बड़ा, यस, नहीं हो सकता.
देन इट अकर्ड टू मी, अकर्ड मीन्स उसको समझ आया, टू मी वैसे अकर्ड मीन्स होता है होना या कोई भी चीज़ घटित होना, बट हियर इट इज इट अकर्ड टू मी दैट इट कुड बी अ पीहेन्स एग। पीहेन क्या होता है? फीमेल ऑफ अ हैन। एक हैन की जो फीमेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पीहेन बोलते हैं, राइट? तो इट अकर्ड टू दैट गर्ल, उसको ये अकर हुआ, उसके दिमाग में क्लिक किया, आइडिया आया कि किसका हो सकता है ये? पीहेन का हो सकता है। देयर वर मैनी इन आर नेबरहुड, क्योंकि उसको पता था कि उसके नेबरहुड में बहुत सारी पीहेन्स हैं। चिल्ड्रन नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पैराग्राफ। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। द नेक्स्ट इवनिंग माई मदर टोल्ड मी दैट शी हैड स्पॉटेड अनदर एग। नेक्स्ट इवनिंग, अगली इवनिंग में उसकी मदर ने, अब नाउ शी इज टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट डे। इस इवनिंग, ये इवनिंग ओवर हो गई, अब वो नेक्स्ट इवनिंग की बात कर रही है, यानी अगले दिन शाम को बात कर रही है। माई मदर टोल्ड मी दैट शी हैड स्पॉटेड अनदर एग। अब उसकी मदर को एक और एग मिला, यानी कल कितने एग थे? 1। नेक्स्ट इवनिंग क्या मिला? एक और रखा हुआ था। वंडरफुल न्यूज़, कैसी न्यूज़ है ये? बहुत अच्छी, शानदार। दिस मीन्ड वी हैड अ रेगुलर विजिटर। चिल्ड्रन, विजिटर होता है जब हमारे घर कोई, जब विजिटर होता है जब किसी के घर आप विजिट करो, जाओ, दैट इज कॉल्ड विजिटर। रेगुलर मतलब रेगुलर वे में। आई हैव ऑलवेज लॉन्ग फॉर अ पैट। लॉन्ग मीन्स चिल्ड्रन विश्ड, इच्छा होना, स्ट्रॉन्ग डिजायर होना। फॉर अ पैट, पैट मीन्स यस, पालतू, जिसको हम अपने घर पे पाल सकते हैं, चाहे वो बर्ड है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो इंसेक्ट है। नाउ आई वॉज लकी टू ओन वन। ओन मतलब खुद का होना। अब वॉट इज शी सेइंग, अगर ये पीहेन रेगुलर विजिटर है तो ये क्या हो गई उसके लिए? पैट हो गए। एंड शी वॉन्टेड टू हैव अ पैट, विश्ड फॉर अ पैट। तो अब वो शी इज़ वेरी हैप्पी कि मेरे पास भी एक पैट हो गया। द नेक्स्ट इवनिंग, अब क्या है उसके भी बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट इवनिंग, यानी एक इवनिंग में फर्स्ट एग मिला, दूसरे इवनिंग में दूसरा एग मिला, एंड शी वॉज, इट वॉज अंडरस्टूड फॉर हर कि ये एक रेगुलर विजिटर है और उसको एक पैट मिल गया। कौन मिल गई? पीहेन। किसको मिली? गर्ल को। नेक्स्ट इवनिंग आई नोटिस्ड अनदर एग। थर्ड पैराग्राफ वी आर रीडिंग चिल्ड्रन। एंड आई वॉज श्योर ऑफ आवर फ्रेंड्स इंटेंशंस। शी हैड डिसाइडेड टू मेक आवर रूफ हर होम। आई वॉज ओवरजॉयड। I repeatedly counted the eggs. Though the following day was the most memorable, there were 4 eggs. The next morning, I finally saw the peahen. I dropped a few pieces of bread and roti onto the roof. Children, now she is talking about next morning. उसने notice किया there was another egg. तो how many eggs are total now? 3. And I was sure of our friend's intention. Now friend कौन है यहाँ पर? उस गर्ल अपनी फ्रेंड की बात कर रही है, यानी पीहेन को वो यहाँ पर क्या बोल रही है? फ्रेंड। इंटेंशन मीन्स होता है चिल्ड्रन प्लान टू डू समथिंग, प्लान टू डू समथिंग। शी हैड डिसाइडेड टू मेक आवर रूफ हर होम। नाउ व्हाट द पीहेन हैज डिसाइडेड? गर्ल क्या कह रही है? अब मुझे प्लान समझ में आ गया है, किसका? पीहेन का। वो क्या चाहती है? जो हमारी रूफ है, जो हमारी छत है, उसको क्या बनाना चाहती है? अपना घर। यस। आई वॉज ओवरजॉयड। नाउ शी वॉज ओवर, बोली बहुत ज़्यादा खुशी हो जाना कि अब तो ये यहीं घर बना लेगी तो मैं इसको रोज देख सकती हूँ, उसका ध्यान रख सकती हूँ, उसके साथ खेल सकती हूँ, राइट? शी वॉज कंसिडरिंग द पीहेन एज हर पेट। आई रिपीटेडली काउंटेड द एग्स। और वो रिपीट बार बार क्या कर रही थी? गर्ल जो थी वो काउंट कर रही थी। किसको काउंट कर रही थी चिल्ड्रन? यस, एग्स को काउंट कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, एंड हाउ मेनी वर देयर? द फॉलोइंग डे वॉज द मोस्ट मेमोरेबल, देयर वर 4 एग्स। अब वो जो दिन था, मेमोरेबल मीन्स होता है यादगार, जो हमारे लिए हमेशा याद बनी रहे, क्योंकि वो कितने एग्स हो गए थे वहाँ पर? 4। हाउ मेनी एग्स वर देयर? 4। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाइनली सॉ द पीहेन। नेक्स्ट मॉर्निंग, जो अब एक और नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट डे क्या देखा उन्होंने? फाइनली पीहेन को देखा। किसको देखा? पीहेन को, करेक्ट। आई ड्रॉप्ड अ फ्यू पीसेज ऑफ ब्रेड एंड रोटी ऑन टू द रूफ। और अब उन्होंने क्या, उसने गर्ल ने क्या डाल दिया उसके लिए? खाने के लिए क्या डाला? कुछ पीसेस ब्रेड के और रोटी। आई नेक्स्ट पैराग्राफ 4।
I had to wait for 21 days for the eggs to hatch. It had become a daily ritual to watch the mother bird. I did not see her moving an inch in spite of the sun. On some days it rained heavily and I was sure the bird was too cold too. Though it's nice to have some showers, especially in the hot season. For the mother hen, it was not so. I had to wait for 21 days. For how many days she has to wait? 21 days. 21 days equals to 3 weeks. कितने weeks होते हैं children 21 days में? 3 weeks. Because 1 week considered 7 days है, right? एक week में कितने दिन होते हैं? 7. तो उसको कितने दिन wait करना है? 21 days. 21 days में कितने week होंगे? Correct. 3 weeks होंगे. किसके लिए वेट करना होगा? फॉर द एग्स टू हैच. हैच मीन्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू चैप्टर 5 में मैंने आपको बताया था कि हैच का मतलब होता है टू कम आउट ऑफ द यंग बर्ड्स. छोटे छोटे बर्ड्स को जब एग से बाहर आते हैं उसको बोलते हैं हैच. इट हैड बिकम अ डेली रिचुअल. ये क्या हो गया है? हमारा रोज का काम हो गया है. डेली रिचुअल हो गया, हमारा रोज का रिचुअल हो गया है. टू वॉच द मदर बर्ड, यानी उनको डेली वो मदर बर्ड को देखते थे. I did not see her moving an inch in spite of the sun. मैंने उसको एक भी इंच मूव करते हुए नहीं देखा. किसकी वजह से? धूप की वजह से. यानी धूप के बावजूद, यानी धूप थी वहाँ पर, it was sun, still she was not moving an inch. On some days it rained heavily. कुछ दिन तो धूप होती थी और कुछ दिन क्या हुई वहाँ पर? rain. And I was sure the bird was cold too. तो मुझे ये श्योर था कि सन में वो हॉट हो जाती होगी और गर्मी में वो जब रेन होती थी तो कैसे हो जाती थी वो? कोल्ड. दो इट्स नाइस टू हैव सम शावर्स स्पेशली इन द हॉट सीजन. हॉट सीजन्स में यानी गर्मियों में ये अच्छा है कि हमें क्या लेना चाहिए? शावर्स. आप लेते हो चिल्ड्रन शावर्स? कौन कौन लेता है? वॉशरूम में जाते हैं नहाने के लिए, शावर से नहाते हो? आपके घर में है ना? येस, आई यूज टू टेक. आई एम श्योर आप भी लेते होंगे. और इन ड्यूरिंग हॉट सीजन तो हम लोग दिन में 1, 2, 3 बार भी शावर ले लेते हैं, नहा लेते हैं 2-3 बार. येस. फॉर द मदर हैंड इट वॉज नॉट सो. लेकिन मदर हैंड के लिए ऐसा नहीं था. शी कुड नॉट टेक शावर. सो इट इज़ बेटर दैट इट वॉज रेनिंग हैवीली एंड शी मस्ट बी गेटिंग कूलर. कैसी हो गई होगी वो? ठंडी हो गई होगी. चिल्ड्रन प्लीज़ रिवाइज दिस चैप्टर एंड ऑन द नेक्स्ट टर्न वी विल कंटिन्यू इट. नेक्स्ट टर्न पर जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. आई विल शेयर दी डिफिकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड बैंक इन द PDF फॉर्म. सो प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क today itself and on the next turn we will complete the chapter including the book exercises. हम book exercises तब करेंगे जब ये chapter हमारा complete हो जाएगा. Thank you children and have a nice day.